I will try to cover today two experiments which are already mentioned in virtual lab and of course are included in your syllabus. आपके syllabus में भी जुड़े हुए हैं, right? So can you see my screen if I'm not wrong? Yes. Okay. So when we go with the vlab.co.in, you can see here. सर सभी को स्क्रीन मेरी दिखाई पड़ रही है? Yes. Okay, Aman, fine. Thank you so much. So basically, when you go with the vlab.co.in, you can see this physical science page. Okay. So on physical science page, you have to actually choose one of the domain among physical sciences, chemical engineering, biotechnology, electronics, electrical engineering, mechanical, physical sciences. Okay. So yesterday we discussed about the mechanics lab. So if you go with the Amrita Vishwa Vidyapeeth, this lab, mechanics virtual lab. Okay. So basically here you can see some of the experiment talk and angular acceleration of a flywheel, torsional oscillations in different liquids, moment of inertia of flywheel, Newton's second law of motion, ballistic pendulum, collision balls, projectile motion, elastic inelastic collision. But in your syllabus, both the experiments are mentioned, like moment of inertia of flywheel and Newton's second law of motion. So let's discuss one by one. Okay. When you click on moment of inertia, जब आप यहाँ पे click करेंगे, so you will get a web page of moment of inertia of flywheel. There you can see theory, procedure, self-evaluation, simulator, assignment, reference, feedback. Okay. So again, when you go with the experiment, just you try to first of all read out your lab manual. What is the aim or objective of the experiment? Then you go through the operators used in the experiment while you do some observation. Okay. So in this experiment, we need operators flywheel, weight hanger, on which actually we can mount some weights, slotted weights, stopwatch. So slotted weight which we have to slot on the weight hanger, meter scale, and so on. Okay. So generally you can see flywheel is already mount on at the axle on the wall. Okay. You just issued this one, weight hanger, slotted weights, stopwatch, and meter scale. That's it. Otherwise, this assembly is already mount on the wall of your lab. So now if you go with the theory, flywheel is what? Flywheel is nothing but a can you please hear me? If you have any problem, you can tell me. Okay? No issues. आप बच्चों मुझे बीच में इंटरप्ट करके बता सकते हैं कि हाँ प्रॉब्लम हो रही है. So first of all, let's talk about flywheel. Flywheel क्या है? It's a heavy wheel which is attached to a shaft through which actually it can roll down, take rounds, you know, so that it can deliver smooth delivery of power from a motor to a machine if we associate this flywheel to any other machine, right? So now you can see flywheel consists of a circular disc with a strong axle on which it will take round. Axle is mounted on ball bearings with the help of two fixed supports. There is a small peg on the axle. This is the small peg. One end of the cord is loosely looped around the peg, and its other end carries the weight hanger. So this is loosely looped, and this one is the weight hanger associated with the weight hanger. Okay. So when you give some load here, so basically start your observation, so it will fall down.
Okay, so we need to basically wait whenever it touches the ground. So we need to find out the number of turns taken by the wheel and time observed by the stopwatch. Okay, so here you can see the potential energy just to when the mass basically descends through height, suppose this is h height, so what will be the loss in the potential energy? Mgh. You know, potential energy is required to lift from ground to some height, so it is basically going down to the ground. So this is nothing but a loss in potential energy in terms of mgh. So what is the kinetic energy of flywheel? Everybody knows about that, high of I omega square, where I is moment of inertia and omega is the angular velocity. Omega square, so you may treat where I is moment of inertia in case of and omega is the angular velocity. When the part omega square, so you may treat where I is moment of inertia in traveling along, or we can say moving along one direction in a linear position. So the kinetic energy gained by the object is half mv square, right? So gain of kinetic energy in the descending weight assembly is half mv square, and v is the velocity at the time when the weight basically weight assembly, that is along with this weight and hanger. Okay, this is hanger on which you have to mount the weight. So now you can see what is the work done is the friction is equal to work done in overcoming the friction of the bearing supporting the flywheel assembly so it can take rounds, is equal to n times wf. N is what? N is nothing but a uh, number of times the cord is wrapped. Here this cord is wrapped, so this is the number of times that cord is wrapped. Okay, मतलब कितनी बार उसे लपेटा गया है, right? Now what is wf? Wf is the work done to overcome the frictional torque in rotating the flywheel assembly completely once. So what is the, now we know already that energy is conserved in a system. So what will be the total potential energy is equal to P loss is equal to this one. So kinetic or plus potential energy is giving out the total energy. Actually it must be conserved. So what is it now? Equal to K of flywheel, that is the kinetic energy of flywheel, kinetic energy due to friction, and here due to this weight. And then when you put it, all the relations here, values, you will get this formula of moment of inertia, capital Nm, n plus n 2gh over omega square minus r square. So now these representations are actually signifying like I is moment of inertia and number of rotation, which flywheel is basically rolling down. So how much rotation actually we have to note it down. M is the mass of the ring, M mass है ring का. N, small n is the number of windings of the string on the axle, and g acceleration due to gravity of the environment. That means again we can change the environment. So whatever we have done in yesterday's workshop, so we have a full opportunity to change the environment. Okay, like we can perform the experiment on earth as well as moon, Uranus, Saturn, Jupiter, right? So this may be possible only in case of virtual lab. So h is the height of the weight assembly from the ground, so which actually we have to measure out the height. So we must have meter scale. And what is the small r? Radius of the axle. Okay. So applications you already know, so no need to discuss here. Again, we will go through the procedure. Procedure, just wait a minute, give me one. Okay. If we go with the procedure, can you see my screen?
Can you see my screen? Yes, ma'am, you are visible. Okay, Swati, thank you so much. Now you can see the procedure for doing simulator, that you have to do simulation here. There is a simulator in the form of a picture. You can see there basically some drive keys are there. So you can click on it, and by following the procedure for doing the real lab or simulator, you can follow the instruction and then can go with the experiment. So in our real lab, what we do actually, length of rod is carefully adjusted. कॉर्ड, ठीक है, तो कॉर्ड उसका जो लेंथ है उसको पहले हम एडजस्ट कर लेते हैं, सो दैट व्हेन द वेट हैंगर जस्ट टचेस द ग्राउंड, तो वो क्या हो जाना चाहिए, लूप स्लिप कर जाना चाहिए पेग से, लूप ओपन होकर के क्या हो जाना चाहिए, स्लिप कर जाना चाहिए, राइट. A suitable weight is placed in the weight hanger. Again, we have a facility just to change the weights, 50, 50, 50 gram or 100 gram, 100 gram, because this is a flywheel. So must have a weight of at least 100 gram, 100 gram, right? Let's check what is going there. Then we, in our physical lab, what we do, chalk mark we just made on the rim, so that it is against the pointer, and the weight hanger just क्या करेगा, touch करेगा ground. Other end of the cord is loosely looped around the peg. It was associated with the rod, keeping the weight hanger just touching the ground. Flywheel is given a suitable number of rotation, so that the cord is wound around the axle without overlapping. The height of the weight hanger from the ground is measured. Flywheel is released. Then you can see the weight hanger descends, नीचे आएगा, and the flywheel क्या करेगा, rotate करने लगेगा. So cord slips off from the peg, cord slip कर जाएगा, and the weight hanger touch करने लगेगा. By this time the flywheel would have made n rotations. n rotations हो जाएंगे complete. So you need to note down the rotations. A stop clock is started just when the weight hanger, जैसे ही वो टच करेगा ग्राउंड को weight hanger, so stop clock was also started. So here we have given the facility of a stop clock also. So the time taken by the flywheel to come to a stop is determined as t seconds. So normally it is given in this experiment, it is given in hours, minutes, minute, seconds. So you may convert minutes into seconds. Finally, you can take the sum of minutes in seconds and then try to convert them into only in seconds. The number of rotation made by the flywheel during this interval will be also counted, and the experiment is repeated by changing the value of n and m. N number of wound, which a number of we can say the round, which is basically made by the cord. Okay, and mass actually we can keep it on the weight hanger. Okay, we can change it. So by changing or varying this value of small n and m, we can basically repeat the experiment and find out the value, can plot a graph also. So with these values, we will note down the moment of inertia will be calculated by using this formula. So this is basically observation table which we use generally in our physical labs, right? But here, okay, okay. So here, this is the procedure to do the simulation, how to perform the experiment. The steps are mentioned. So here, first step is choose any desired environment by clicking on the combo box. That is, you can change the environment with the help of combo box. Combo box actually, because it is consisting of different type of environment. So when you go with your physical lab, you have only facility of earth.
Okay, you are performing the experiment only on Earth. So you will note down gravitational acceleration 9.8 for Earth. Okay, but we cannot physically do this experiment in case of Moon, Uranus, Saturn, Jupiter. Right. So now in this experiment, if you go the next step, adjust the sliders to have suitable dimensions for flywheel arrangement. Then we will click on release a flywheel to start the experiment. So when you click on the release flywheel, so experiment will be started. Okay. So number of revolution of the flywheel, then after the loop when it goes slips off from the peg. Okay. So it will be indicated on the side of the Excel. We need to note down the time taken by the flywheel just to come at rest position with the help of rest watch, and then we will keep repeating the experiment for different values of variable by changing the values of a small n and m. Right. Now students, you can see this self evaluation form. Self evaluation actually, when you go with the theory and procedure, you must have a sound knowledge of theoretical concept of this experiment, so you can choose the right answer and then you can submit it, and then you can go with the simulator. So again you have to log in your user id and password. Okay, then you can see the simulator here. So again this is made by the participating institute like IIT Kanpur, Amrita Vishwavidyapeeth, and so on. Unfortunately, this experiment is performed by as prepared by Amrita Vishwavidyapeeth, and of course, this is included in virtual lab curriculum, which is made by new education policy by our renowned faculty member. So basically we have to follow this one also, and then after completing this all these experiments at the last day, we will keep concentrate on the experiments whatever IIT Kanpur has basically made with the help of some participating institute. Okay, so now we are going through with this experiment. So this is the assembly of flywheel with the axle. You can see two supports, and this black box is actually noting down the number of rotations taken by the flywheel when you release flywheel. And this is a meter scale through which actually you just measure the length of the height of the this weight hanger when it goes down, when the mass actually descends, जब mass नीचे आता है. So when it pegs off from the slips down or pegged from this rod, so basically this goes down and the thread will be coming towards the ground. So you can see here the number of rotations taken by the flywheel, as well as you can measure here the time taken by the revolution. Okay, so you can see here hours, minutes, seconds, but finally you need to convert only in second, because our calculation is only for we follow generally SI units, so just need to convert them into seconds only. Okay, now you can see this is from the ground, actually it is of 2 centimeters from the ground. Okay, now here you can see one by one. First of all, choose environment. So you can see here Earth, Moon, Uranus, Saturn, Jupiter, all are available. Okay, so basically we can do Earth this experiment. So basically we are choosing here for Earth, and I am giving you assignment to perform this experiment on Moon, or this is your wish. This is up to you. You want to choose Moon, Uranus, Saturn, Jupiter, and all, so you can choose it. Okay, so this is up to you, but I'm giving you some assignment. Just choose any one of the different environment rather than Earth. You can basically put the G value and then try to
do this experiment. What is the mass of flywheel? It's 5 kg. Okay. So now, if you take it as 10 kg, suppose mass of flywheel, diameter of the no, diameter of the flywheel is given initially. Actually, it is 10 centimeter. So basically, you can change the diameter also up to from 10 to 30, right? So let us choose it 10. You may take it 10. Let's initially we can take it 10. Okay. And the mass of ring, you can choose some 200 gram to 1000 gram, that is 1 kilogram. Am I right or wrong, students? There are 1000 grams in 1 kilogram, right? That means we can keep change the mass of ring from 0.2 kilogram to 1 kilogram, right? So let us put this mass at initially we can keep it 200, no issues. 200, let's choose it. And what is the diameter of the axle? Is 2 centimeter. Let's choose only 2. Number of wounds, we can keep 2 wounds. Now when you change it, so you can see here the 2 wounds can be seen. Okay. Can anyone tell me, are you able to see this number of wounds? There are 2 rounds made by this thread. Okay. Yes, ma'am. See you. Okay, thank you, Vidya. So now you can put here the values. Okay. Mass suspended. Now you can see this mass actually, and you can put the values here and find out the what is the at this position, what is the height of this weight hanger from the ground. 4 centimeter. Okay. So you can write here 4 centimeter. Don't worry about this 4 centimeter, because whatever the formula has mentioned, so it will take automatically the values in SI order, SI unit. Okay. So do not need to convert them into meter here, or some any other units. You have to follow the units whatever mentioned here. Okay. So value of G is what we are performing on it. So 9.8. Okay. So, sorry. Acha. Actually, sometimes some of the students from other states, they used to say कि मैम हमें हिंदी नहीं समझ में आती है, राइट? चलिए थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, राइट राइट, चलो मिक्स कर लेते हैं. हाँ नहीं, डेफिनेटली, बिकॉज वी आर फॉर ऑल. ओके. तो बच्चों थोड़ा थोड़ा आप लोग करिए. वैसे मैं एक पते की बात बताऊं, कोशिश यही करिए जितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, आप लोगों को सभी को कोशिश ये करनी, इफ यू गो विद द रिसर्च वर्क फर्दर हायर स्टडीज, आगे आप जाओगे तो आपको लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाएगा. तो इस चीज को थोड़ा रिमूव ऑफ करो धीरे धीरे. ठीक है. बहुत जरूरी है कि रोजमर्रा के जीवन में हमें इंग्लिश में बात करना और ये सब चीजें करनी चाहिए अपने कलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ. हाँ, right. चलिए. So mass suspended, actually we can write here. So what is the mass suspended on? We can write this is suppose 200 gram 0.2. Let us choose. And radius of axle, diameter actually given there. So diameter, radius is half of the diameter. It is 2 centimeter. तो बच्चों रेडियस कितना होगा? Ma'am, 1 centimeter. 1 centimeter. So we will write here 1 centimeter. Okay. As you have seen, हमने height कितनी देखी? 4 centimeter.
right? Now, if you go with this number of cord winding n, कितनी windings ली हमने? मैम 2. ओके, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन. अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव चूजन ऑल द वैल्यूज, हमने सारी वैल्यूज चूज कर ली हैं. सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल रिलीज द फ्लाई व्हील. जब सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली हैं, then what we will do, we will click on release flywheel. So when you go with the release flywheel, so it will be coming to the ground and then peg slips from the this rod. Okay, now you can see here number of revolution taken by this flywheel कितने capital N कितने rounds ले रहा है. Okay, so you will note down this value of capital N whenever it will stop, जब ये रुक जाएगा. And you can see on a parallel way, the time is noted down by the stopwatch. So that will automatically stop when the flywheel will stop. So let's wait for a while. कितना आता है value? Okay, 22.87, right? And the time is this. Okay, so 22 point, what was it? 22.87. 22.87, and the time, let us roughly choose 43 seconds. 43 seconds. So the answer is coming out, omega की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 6.68 रेडियन पर सेकेंड. एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी आई? This is 0. Or you can 3.2 into 10 to the power minus 6. Okay, so this is the result what you are getting, जो आपको यहाँ पे मिल रहा है. Now you can put more values here and try to repeat the experiment. Okay, so when you go for the next observation के लिए क्या करेंगे बच्चों? Again, we will add one more row and some columns here. And again, हम किसके लिए कर रहे हैं? 9.8. Okay, or you can do one more thing. We can do the same at same values, or just note down these values so that हमें याद रहे कि क्या वैल्यू थी. Diameter of flywheel कितना है? 10 centimeter. And the mass of ring 200 gram. 200 gram. And diameter of axle 2 centimeter. Number of wound Ma'am 2. of cord is 2, right? Okay, so we can see the effect of changing environment there. Mass of flywheel, we have noted down everything, huh? So now you can again, अब क्लिक करेंगे रीसेट पे. Wait a minute. हाँ, now it has been reset. Can you see this on screen? Yes, ma'am. Okay. So just यहाँ पे फिर अगेन हमें चूज करना है, बट by changing the environment and keeping all the values same, जैसा कि हमने अर्थ पे चूज किया था वैसे ही वैल्यू हम कर लेते हैं. ठीक है, सपोज मून के लिए कर रहे हैं हम. ठीक है, सो फॉर मून एक्चुअली G is 1.63 एंड फ्लाईव्हील का जो डायमीटर है कितना था? 10 सेंटीमीटर, राइट? एंड mass of ring 200 gram, diameter of axle is 2 centimeter, and the number of wound of cord कितने हो गए? 2. Now we can release this and try to see the effect. मैम स्क्रीन नहीं आ रही.
This is 1.63 this time, huh? Yes, ma'am. Just wait a minute. We have done one mistake. Let us see. There is no issue. We have not seen this height. अब आप देख रहे हैं कि कितना अभी भी इसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस बहुत ज्यादा है, रोटेशंस, राइट, इन केस ऑफ मून. कमिंग टू इट रेस्ट पोजिशन नाउ. अब ये रुका तो कितना हो गया 42.59. So the height was same. This was 1. This was 0.2. And then number of chord कितना था 2. And chord winding 2. Number of revolution कितना यहाँ पर आया 42.59. Okay. 42.59. Now you can see revolution कितने हो गए, just double of 22.87. And time taken by 59 seconds, roughly just write only 59. Okay. So here angular velocity कितनी हो गई 9.07. And the moment of inertia is increasing on 2.8 into 10 to the power. No, not increasing on. It's decreasing off. Earlier it was how much? 3.2 into 10 to the power minus 6. Now it is 2.83 into 10 to the power minus 7. Okay. So you can basically see the effect of environment. It's a comparative analysis. And we can do the same process for next environment also. Just reset again and मैम एक्सियल डायमीटर क्या है? Uranus. Okay. मैम Yes. एक्सियल डायमीटर नहीं समझ मैम. Sorry, beta. एक्सियल डायमीटर मैम. Axial diameter. यस मैम. This is the diameter of axle है बेटा. एक्सेल. ओके मैम. हाँ, it's not axial. तो ओके. एक्सेल जो यहाँ पे लगा रहता है जिस पर ये एक्चुअली माउंट हो रहा है उसका डायमीटर है ये. ओके मैम, रॉड का. हाँ. और ये डायमीटर ऑफ फ्लाई व्हील, जो फ्लाई व्हील है ना ये, इसका डायमीटर है. ठीक है. ओके. सो नाउ वी कैन डू वन मोर थिंग. वी कैन डू सम कंपैरेटिव एनालिसिस. अब यूरेनस के लिए कर लेते हैं. फॉर यूरेनस जी इज इक्वल टू व्हाट? जी कितना है 10.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड द मास वी विल कीप द सेम वैल्यूज. मास 5 kg and the diameter of flywheel 10 centimeter, let's choose, or a diameter of axle 2 centimeter. And the बंद करनी कितना कॉर्ड में हम वाउंड रखेंगे 2 रखेंगे, राइट. देन यू कैन सी 4 centimeter हाइट. अगेन 4 centimeter. So we are going through the third observation to add one more 4. And here कितना है हमारा जी 10.5. Let's keep the same values here. And this is 1. And number of cord winding कितनी है 2 है. Okay. So now we have to note it down, number of revolution by the flywheel, and time also we have to note it down. Okay. So let us release the flywheel. Now you can see number of revolution are little fast. कुछ स्पीड से ये
राउंड ले रहा है, ठीक है। सर एनर्जी बैंड गैप का एक्सपेरिमेंट है क्या बीएससी फर्स्ट सेकेंड ईयर में? नहीं है, आई थिंक सेकेंड ईयर में भी नहीं है ना, थर्ड ईयर में है। ठीक है, थर्ड ईयर में हम लोग आरईसी बांदा की लैब है एसोसिएटेड विद आईआईटी कानपुर, तो उसको देख लेंगे, वो वर्चुअल लैब में है शायद करिकुलम में, उसको डिस्कस कर लेंगे फिफ्थ सेमेस्टर में। हाँ 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 ठीक। ओके, तो बच्चों यहाँ पे कितने रेवोल्यूशन है? 42.60 60 है ना, और टाइम इज नोटेड डाउन 59.8 59.8. So let us write the same values here, whatever we are finding, हमें क्या मिल रहा है, and the time revolution 59.8. So now you can see the effect. This is now changing. कितना change आ रहा है? 3, 4, 5, 1.9. What is this value in 10 to the powers? Can you please explain it? Moment of inertia कितना है बच्चों? जल्दी बताइए। भाई कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। 1.9 into 10 to the power minus 6. 1.9 into 10 to the power minus Or minus 6 maybe. Am I right? minus 6. Yes, this is minus 6. Okay. राइट, तो अभी आपने क्या देखा? 9.8 किसका था? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे था, ठीक Yes, है। ma'am. एंड हमने अभी कौन सा इन्वायरमेंट चूज किया है? Uranus side, ma'am. यूरेनस। हाँ, यूरेनस हमने चूज किया, राइट। तो आप ये इफेक्ट देखिए कि अर्थ पे जब हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इन आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सो यू कैन सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था? 3.2 इनटू दिस वाज ऑफ कोर्स 10 टू द पावर माइनस 6, राइट। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो रहा है? 1.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। मतलब ये नियर बाई वैल्यूज हैं, एंड देन यू कैन सी द चेंज इन मोमेंट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन टेकन बाय द फ्लाई व्हील. इट इज 42.6 एज मेजर्ड इन केस ऑफ कहाँ पे? यूरेनस में, राइट। और हमारे अर्थ में कितना था? 22.87. सो बेसिकली ये हमें एक ऐसा आइडिया देता है कि वैल्यूज कंपैरेटिव एनालिसिस दे रहा है, just to understand easily what will be the effect of environment, what will be the effect of G in this experiment, ठीक है। So you can do similarly. एक्चुअली आपके फिजिकल लैब में तो एक्सपेरिमेंट जो है वो एनवायरनमेंट चेंज करके नहीं हो सकता है, बट दिस इज गुड फैसिलिटी विच इज अवेलेबल इन वर्चुअल लैब। तो हम यहाँ पे यूज करके हम समझ सकते हैं कि जी का क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इन अ डिफरेंट वे, इसलिए मैं डिफरेंट वे में कर रही हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि आपको जो रियल लैब में जैसा करना है वैसे ही यहाँ परफॉर्म करें, बिकॉज ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो फैक्टर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपको वो दिया गया है फीचर, वो उस फीचर के साथ आप करिए, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होगी, राइट। तो बेसिकली अब यहाँ पे अगर हम एनवायरनमेंट को चेंज करके फिर से देखते हैं,
जस्ट रीसेट, इसको फिर से एक बार रीसेट करके देख लेते हैं एंड देन वी कैन सी द, और आपके लिए एक्सरसाइज ये होगी, वेट, रीसेट करें, आपके लिए एक्सरसाइज ये होगी कि आप इसको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ मास ऑफ रिंग, डायमीटर, वोंट, इनको चेंज करिए, एम और एन को चेंज करिए, ठीक है। तो ये आई एक्सपेक्ट टू ऑल ऑफ यू, लाइक you people will perform the experiment. Now we are performing in Saturn. Saturn में कितना है जी का वैल्यू बच्चों? It is 11.0, little larger than Earth and कहाँ से? Uranus से. So keep all the values same, number of wands we will keep the same value and the height is 4 centimeter. Okay, so please add one more column here and try to write the value. कितना था जी का वैल्यू? 11.08. Wait. Fine. And the mass suspended is 0.2 kilogram. This is a radius of axle 1 and the height you can see here, the from the ground is 4 centimeter. So we will keep right here 4. And then next, number of cord winding कितनी दी हमने? 2 दी है. Okay. Now when we release the flywheel, we can see the effect. It will peg off on the slips and goes down. और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैपिटल N और T में क्या इफेक्ट पड़ रहा है. नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस थोड़े फास्ट है फ्लाई व्हील के अभी. Then the time you can see 45, 46 हो गया, 47 and it's increasing on still. Now coming to at rest position. Now it is at rest. Number of revolution 42.5, 42.59. Fine. 0.5. And the time is noted down 59.97. 59.97. Okay. So now you can earlier for Uranus कितना था ये? 8.95. Now it is 8.92. And the moment of inertia was 1.98 into 10 to the power minus 6. Analysis हो गया इसका. I think one environment is left. So you can take a printout. आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो जब भी आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करो एंड यू कैन पेस्ट दिस इन योर फाइल. ये आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, अपने फैकल्टी मेंबर से पूछ सकते हैं डिपार्टमेंट में कि क्या करना है. सो इवन नो ग्राफ इज प्लॉटेड हियर, सो नो इश्यूज. बट इन केस ऑफ अगर कोई ग्राफ प्लॉट करना है, सो यू कैन प्लॉट अ ग्राफ. जस्ट टेक हेल्प ऑफ योर फैकल्टी मेंबर. आप उनसे बोल सकते हैं, आपको वहां पे ग्राफ दे दिया जाएगा. और इनफैक्ट आपको तो हमेशा ग्राफ पेपर कॉपी रखना चाहिए फिजिक्स वालों को. जब भी वो लैब में जाएं, एक्सपेरिमेंट करें, तो ग्राफ पेपर कॉपी तो एक रखे ही रखें. वैसे भी आपको याद होगा 12th में हम लोग रखते हैं. So now again you can reset and we can do the same for the last environment, that is Jupiter. जुपिटर के लिए हम क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज जुपिटर के लिए जो जी है दैट इज ऑलमोस्ट 9 का कितने टाइम्स हुआ? 9 2 18, 9 3 27.
ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज्यादा हुआ ना, अर्थ के 3 टाइम्स ज्यादा ही है ऑलमोस्ट। ओके, तो हम वैल्यूज इन सबको क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। नंबर ऑफ कॉर्ड वाउंड कितने दिए थे, 2, एंड व्हाट इज द हाइट, 4 सेंटीमीटर। सो लेट्स एड वन मोर कॉलम। कितना है जी यहाँ पर, 25.95, and then here 0.2, 1, and here 4, and this is what, 2. Now we have to wait the, now release a flywheel. Okay, it is 16, 17, 18, 19, 20. Okay, Can I ask? now fine, this is 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, it's now 40, 41, now it is 42.59, 42.59, and it has taken 1 minute to take 42.59 round. So we need to convert this into seconds. So in 1 minute actually 60 seconds, है ना? So we will write here 60 seconds. And here कितना वैल्यू आया, 42.59. Now you can see there is no more change in angular velocity. Angular velocity में ज्यादा change नहीं है. किसमें change आ रहा है, 4.96 moment of inertia. Now it is 4.96, very close to 5 है ना, 5 Yes, into ma'am. power minus 6. Okay, so this is a complete we can say sketch जो है एक experiment का है, which is easily not done in your physical lab, जो physical lab में नहीं इसको समझा जा सकता है. I am 100% sure physical labs can not be replaced anymore. कभी भी हमारी जो ये लैब है इनको रिप्लेस हम नहीं कर सकते, बट यहां से हम सिर्फ वो फैसिलिटीज और एक्स्ट्रा दे सकते हैं जिससे कि स्टूडेंट की लर्निंग थोड़ी फास्ट हो, है ना. लर्निंग मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो, like dependency of the each and every variable on output values, we could understand in this experiment कि कैसे डिपेंडेंसी है. तो अभी तो ये मैंने आपको एक मेथड आपको बता दिया कि ऐसे परफॉर्म करना है, बट द थिंग इज व्हेन यू गो विद द थ्योरी अगेन, सो यू कैन सी बहुत सारी चीजें उसमें, लाइक आई इज इक्वल टू व्हाट इज द फॉर्मूला, n upon n plus n and 2 into 2gh upon omega square minus r square. So height was actually constant. We were changing what, n की वैल्यू चेंज हो रही थी ना, कैपिटल n. So it was affecting a lot. n का वैल्यू चेंज हो रहा था. It is in numerator and denominator. So n plus n you can see यहाँ पे जो n वैल्यू है स्मॉल n, that is fixed, और कैपिटल N is multiplied with small m जो कि फॉर्मूला में हमें दिखता है. And you can see the change. I is inversely proportional to omega square also. तो बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनमें जो चेंज हैं आप उनको देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन वेरिएबल किस पर डिपेंडेंट है, सो द आउटपुट एक्चुअली अफेक्ट्स. ओके, यहाँ पर हमने बच्चों आज जो सीखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील. मैं कल का आपको एक छोटा सा एक होमवर्क देती हूँ. यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट आप करोगे
सो डू नॉट चेंज एनवायरनमेंट नाउ। आप एनवायरनमेंट को चेंज नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, जैसा कि आपके फिजिकल लैब में होता है ना, आप उस तरह से करने की कोशिश करेंगे। मास ऑफ फ्लाई यू कैन चूज 5 kg, और फ्लाई व्हील को भी आप थोड़ा सा लिटिल बिट ले सकते हो फ्रॉम 5 to 60 kg, सो दैट यू कैन चूज लाइक 5 इंस्टेड ऑफ चूजिंग 5 आप क्या करोगे, 10 ले लेना वैल्यू, ठीक है। 5, 10, और बाय चेंजिंग मास ऑफ फ्लाई व्हील क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ओके। और डायमीटर ऑफ फ्लाई व्हील, फ्रेम से चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है। सो जस्ट एक वैल्यू को चेंज करो और बाकी सबको फिक्स करते हुए देख सकते हो कि क्या ये वैल्यूज आती हैं, ठीक है। Yes, ma'am. You can have idea, you can have a complete कह सकते हैं कि आपका जो एक कॉन्सेप्ट है वो उसको काफी कुछ स्ट्रॉन्ग करेगा, वो क्लियर करेगा, राइट। क्योंकि ऐसे तो क्या होता है कि हम डेली एक्सपेरिमेंट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी जनरली व्हेन वी गो विद अ बाइसाइकिल राइड, साइकिल चलाना, एवरीथिंग, वो सब टर्न पे हम देखते हैं कि व्हाट शुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एवरीथिंग, सब कुछ हमें पता है। बट द थिंग इज हम कभी उन्हें अपनी डेली लाइफ में कभी भी फिजिक्स को रियलाइज नहीं करते, एक्सपीरियंस करते हैं, बट दिस इज बाय डिफॉल्ट एक्सपीरियंस, मतलब बाय डिफॉल्ट वो होता ही होता है हमारे जीवन में, इसलिए हमें रोज अनुभव होता है। बट द थिंग इज वी नेवर रियलाइज व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। लो होती है रूरल एरिया में तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, 1 घंटे से ज्यादा हम लोग सेशन भी नहीं रख सकते, है ना, सभी का लिमिटेड पैक होता है नेट का, तो ये भी एक थोड़ा सा इशू रहता है बिकॉज यू आर ज्वाइनिंग वाया गूगल मीट, सो ये एक थोड़ा सा दिक्कत रहती है। बट आप कभी भी आपको जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, इफ यू विश टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस आल्सो एनी टाइम, ठीक है। सपोज यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है यू कैन आस्क मी, ठीक है। अभी आप now you may ask question because now the session at my end is over, so you can ask any question. Hello students, now session is over and you can ask any question. Workshop is available, madam is available for your queries, है ना, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा, how many of you have performed the yesterday's experiment? कितने लोगों ने किया? मैडम प्लीज वीडियो ऑन कर लें। Yes, ma'am. कितने लोगों ने किया है एक्सपेरिमेंट? मैं मैडम सुमन त्रिपाठी मैडम से भी अनुरोध करूंगा कि वो वीडियो ऑन कर लें। बेटा कितने बच्चों ने किया है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर श्रद्धा गुप्ता अवेलेबल अमन हैं, सागर, तो वीडियो डिड ऑन यू कर लें। परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट? क्या आपने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट बच्चे? सर मैं 2 मिनट में ज्वाइन होती हूँ, ठीक है, आप लोग तो कंटिन्यू करिए। ओके मैडम। अच्छा, सुमन जी आईआईटी से हैं, हाँ जी जी। अच्छा, विनय जी ने भी ज्वाइन किया क्या? नहीं सर आज नहीं है, वो आएंगे। अच्छा, आज हाँ संडे है थोड़ा। Ma'am, could you repeat once again revision on yesterday's practical, if possible, because we have attended the just. यस्टरडे का एक्सपेरिमेंट आपको आई कैन गिव यू अ रफ व्यू, जस्ट वेट अ मिनट, okay, within a little less time I can discuss little more. Wait a minute, let me again go with the vlab.co.in. Ma'am, can we draw the graph of inertia of flywheel? You can do that. You can plot a graph via some plotting input values and by changing small n, ठीक है। इस आप ग्राफ का एक बिहेवियर देख सकते हो
कि स्मॉल एन और उसमें क्या मतलब एक किस तरह से नेचर दिख रहा है ग्राफ का। व्हेन यू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन एन एंड आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इवन मास ऑफ द रिंग ऑल्सो, जो आप वेट हैंगर पे जो मास आप दे रहे हो, एक्चुअली उसका भी देख सकते हो कि इफेक्ट कितना होगा, राइट? थोड़ा सा पौधा हटा दो उधर से। सर मुझे थोड़ा सा वीडियो ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि बैंडविड्थ लो हो जाती है आजकल। एक्चुअली यहाँ पे मेंटेनेंस चल रहा है ना वाईफाई वाला लाइन का, जी जियो फाइबर। जी तो उसका आज मैंने इसीलिए वीडियो ऑफ, नो कल जो है ना वो साइट, तो एक रीजन था ही, एक तो सीजन थोड़ा सा कोल्ड है तो मॉइस्चर की वजह से भी होता है, और दूसरा एक रीजन ये है कि यहाँ पे मेंटेनेंस चल रहा है जियो फाइबर का। जी। गुड मॉर्निंग करना मैम। मैं डॉक्टर सुमन त्रिपाठी, गुड मॉर्निंग किसी सुमन का जी, कोई क्वेश्चन है? क्या? किसी का कोई मैम थैंक क्वेश्चन? यू गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। आपने बहुत अच्छा से बच्चों को समझाया सर, काफी खुश हैं, उन्होंने मुझे बताया था। थैंक यू सो मच मैम। मैडम हम लोग जो है ना अपने आईआईटी कानपुर के एक्सपेरिमेंट भी लास्ट डे शेयर करेंगे। एक्चुअली ये जो एनईपी में जितने एक्सपेरिमेंट इंक्लूडेड है ना, हम उनको कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार जैसे वर्चुअल रियलिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो वर्चुअल रियलिटी में हमने 5 एक्सपेरिमेंट पूरे डिजाइन कर लिए हैं। 3 को सबमिट कर दिया था, बट वीआर का सेटअप जब आ जाएगा आईआईटी से, तो फाइनली हम लोग उसको और थोड़ा अच्छे से कर पाएंगे, है ना? क्योंकि उसको ऐसे वीडियो में इंटीग्रेट करना एक अलग चीज होती है, बट वीआर पे उसका एक एनवायरनमेंट को देखना वो एक अलग चीज है, ठीक है? तो मैंने अपनी स्टूडेंट टीम से बात करी है, कल थोड़ा मीटिंग भी हुई थी, तो एक्चुअली उनके एग्जाम अभी चल रहे हैं, इसलिए जो आरईसी बांदा का जो वो एक सेशन है ना, वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, है ना? उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है? एग्जाम उनके अभी से अभी मतलब ये पी एग्जाम चल रहे थे और अब फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके बाद जो है कुछ दिन के लिए थोड़ा 5 to 6 डेज ये डिजाइन करेंगे, अदर एक्सपेरिमेंट्स टू, तो आई थिंक 7 हम लोग कंप्लीट कर ले जाएंगे। अब हमारा ये थोड़ा सा मानना है कि हम थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, जैसे बच्चे यहाँ पे कह रहे थे ना, लाइक अभी ये सूरज ने बोला कि कल का सेशन रिपीट हो जाता। हम लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे कि एक वीआर अप्लाई करते हुए जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं अमृता के और ये सब, ये सारे हम लोग वीआर मेथड पे ले आएंगे, ठीक है? वीआर टेक्नोलॉजी पे हम पूरी फिजिक्स की लैब डिजाइन करेंगे, और जितने भी लैब जो हमारे वर्चुअल लैब करिकुलम में आ रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, हम उनको प्रपोज करेंगे, ठीक है? इसलिए क्योंकि हमारे लिए अच्छा है ना, आईआईटी कानपुर की लैब हमारी यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगी सारी की सारी, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना? तो मतलब चूंकि इतने हार्ड वो कर रहे हैं काम, तो फिर इसका मतलब है आईआईटी के साथ मिल करके हम लोग, तो इसका मतलब है कि हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर भी आते हैं, बट नो इश्यूज। बच्चे नए हैं, अभी बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं, तो उन्हें पता भी नहीं है कि हमें क्या अभी करना है, लाइक जैसे बीटेक में भी होता है, तो ये थोड़ी थोड़ी परेशानी आती है, बट नो इश्यूज। आज के सेशन और कल का सेशन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, और एक अच्छी चीज इसमें ये थी कि भाई आप अर्थ में रहते हुए अर्थ के ही एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैम मैंने अभी ज्वाइन किया, मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। एक्चुअली आई एम फ्रॉम बायोलॉजी बैकग्राउंड, तो मुझे फिजिक्स का थोड़ा कम नॉलेज है, आई एम कोर बायोलॉजिस्ट, तो मैंने भी आपका लेक्चर देखा तो मुझे भी काफी कुछ जानने को मिला इसमें। और मैं चाहूंगी आप बच्चों को भी मोटिवेट करिए। देखिए बच्चे यहाँ जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन वर्कशॉप में कनेक्ट हैं, आप देखिए मैम से एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना एक आइडियल मोटिवेशन ले सकते हैं। मैम के अंडर बहुत से इनके स्टूडेंट्स वीआर पे काम कर रहे हैं बच्चों, तो आप भी एक ऐसा एक इनिशिएटिव लीजिए। जैसे हमने अभी आरएससी बांदा में हमने 1 वीक का एक वर्कशॉप रखा है जिसमें आपको वर्चुअल रियलिटी पे सिखाया जाएगा। तो मैं चाहूंगी कुछ बच्चे इनिशिएट लिए उस वर्कशॉप को 1 वीक हमारे साथ रहें और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करें और सीखें इस नई टेक्नोलॉजी को। जैसे मैम के अंदर बच्चे बहुत से वीआर, जल्दी आपको वीआर मैम दिखाएंगे कि वीआर बेस हम कैसे प्रैक्टिकल को करेंगे। तो आप भी मैं चाहूंगी कि इस नई टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और 1 वीक रहिए और कुछ सीखिए। जैसे मैम के कितने सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो क्यों why you not initiate such kind of the great initiative taken by the IIT Kanpur and the RSC Banda and other institute like PSID Kanpur। तो बच्चों आप भी मैं चाहूंगी रजिस्ट्रेशन कराइए, सीखिए, और जिससे आपका ये बेनिफिट होगा
अगर आपने इस वीआर टेक्नोलॉजी को सीखा वहाँ पे हमारे साथ, तो जो बच्चा हमारे साथ इंटर्नशिप करना चाहता है, आईआईटी कानपुर के साथ इंटर्नशिप कराना चाहता है, उनके लिए जो डोर होते हैं बहुत ही इजीली ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक वीआर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। सभी बच्चे फिल्म देखना पसंद करते हैं। अभी रिसेंटली आपने शायद मुझे ये नहीं पता कि तेजस कितनी पुरानी मूवी है या न्यू मूवी है, अभी नहीं आई है, मुझे नहीं मालूम। आपको इतना मालूम है शायद ये जो तेजस है मतलब कंप्लीटली कह सकते हैं मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट पे बनाया गया था हमारा फाइटर प्लेन इंडिया में पहली बार। जबकि हम AN-32 और ये सब रशिया से मंगाते थे, तो चूंकि रशियन कोड्स होते हैं ना, तो उनका एक भी पार्ट अगर कंपोनेंट खराब हो गया सो वी कैन नॉट डिकोड देम, क्योंकि उनका जो कोड है वो उनकी लैंग्वेज में है और उनका उन्हीं को पता है। तो बेसिकली फॉर रिपेयरिंग पर्पसेस हम उन्हीं को देते थे। मतलब वो चाहे रशिया हो चाहे जर्मनी हो, जहां से भी हम प्लेन्स लेते हैं, अमेरिका, हम सब जगह उन पर डिपेंडेंट थे। तो पहली बार इंडिया ने जो है मतलब सक्सेसफुली बनाया। सो वन ऑफ द लेडी पायलट दैट इज हर नेम इज तेजस, तो उन्होंने पहली बार उस प्लेन को मतलब फ्लाइट मोड पे लेकर के आई, उड़ाया। उसमें कल मैंने मूवी में देखा, वेदर इट वाज पार्ट ऑफ दैट तेजस मिशन और नॉट, आई डोंट नो, क्योंकि मुझे उस मिशन के बारे में ज्यादा नहीं पता। जी, बट उस मूवी में एक इल्यूजन दिखाया गया है कि देयर वर 2 फाइटर प्लेन्स, और वो फाइटर प्लेन्स तेजस जो थे वो एक बड़े से एयरक्राफ्ट में बंद थे, एंड जो टेररिस्ट थे उनको फाइंड आउट नहीं कर पाए इनसाइड द एयरक्राफ्ट जस्ट बिकॉज ऑफ इल्यूजन। तो ये इल्यूजन जो है वीआर के थ्रू प्रिपेयर किया गया, एक बाउंड्री, जिससे उन्हें इस पार से उस पार दिखाई नहीं दिया कि इंडियन जो फाइटर प्लेन्स उसमें एयरक्राफ्ट में बंद है। और इवन उसको जब ग्राउंड पे लेकर के आए फाइटर प्लेन्स को, तो वहां पर भी एक इल्यूजन सा क्रिएट किया गया बाय अप्लाइंग वीआर टेक्नोलॉजी, और उसके बाद उन्हें वो फाइटर प्लेन्स दिखाई नहीं दिए और वो टेक ऑफ भी कर गए, वहां से चले भी गए, सब कुछ हो गया। और ये वहां पे मतलब सोचिए ये किस में था, पाकिस्तान के बॉर्डर पे था, तो हम बॉर्डर के रूल्स भी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जो एयरक्राफ्ट था वो शायद किसी दूसरी और कंट्री का था, एंड दैट वाज समथिंग, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि कौन सी कंट्री थी। तो उस कंट्री को सारी परमिशन पाकिस्तान से लेनी पड़ रही थी, तो हमें क्या करना था, 2 लोगों को कन्विंस करना था, अनदर कंट्री और पाकिस्तान, कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंडियन प्लेन नहीं है, ठीक है। तो बाय अप्लाइंग वीआर टेक्नोलॉजी दे हैव क्रिएटेड इल्यूजन, और उस इल्यूजन से हम अपने प्लेन्स को छिपा पाए और सक्सेसफुली अपने जो इंजीनियर था उसको वहां से ले पाए, यहाँ पर इंडिया में वापस ला पाए। तो ये आप देखिए कि टेक्नोलॉजीज कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। हम सोचते हैं कि ये इंजीनियर ही करेंगे, नहीं बच्चों, आज इस एरा में आप ये देखिए, रिसेंटली आपके यहाँ शायद आपको पता होगा कि इंटर्नशाला जैसे प्लेटफॉर्म है इन एंटायर कंट्री इंडिया। तो इंटर्नशाला इज अ प्लेटफॉर्म which basically government of India is insisting to take benefit of this platform। और ये प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया मजेदार प्लेटफॉर्म है, इसमें इंसिस्ट किया जा रहा है जितने भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, और स्पेशली फॉर बीएससी और एमएससी के लिए इंटर्नशिप, एंड दीज आर पेड एंड अनपेड इंटर्नशिप्स। तो ये जो स्टूडेंट हैं वहां पर जाकर के इंटर्नशिप जैसे लेते हैं, उसी तरीके से क्यों ना वो आईआईटी कानपुर और हमारे साथ मिलकर के वर्चुअल रियलिटी पे काम करें, बिकॉज we are designing total 20 experiments now for IIT Kanpur, 1 lab, and 10 experiments and 8 experiments of our lab also. So we have signed actually MOU और हम लोग ये काम कर रहे हैं। Is it possible? Can we demonstrate one VR based lab if any lab is prepared for demonstrations? Yeah, definitely. I think I can demonstrate one of the lab by tomorrow. Yes, ma'am. Sure, because we have sufficient time, so I think we can discuss it by tomorrow or a day after tomorrow. No issues. क्योंकि अभी तो हमें 11 तक कंटिन्यू करनी है, तो बच्चों को पूरा जानने का हक है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या,
क्योंकि उनको ये जब सीखेंगे, जैसे कि एमएससी के स्टूडेंट भी सर आप उनको भी अगर हो पॉसिबल तो उनको भी जोड़िए, तो बिल्कुल सर। एमएससी स्टूडेंट भी सीखेंगे, है ना। और यहाँ पे बीएससी के स्टूडेंट को हम छोटे छोटे असाइनमेंट दे सकते हैं अपने स्टूडेंट और अपनी टीम के साथ में, लाइक कुछ नहीं, छोटा सा HTML का हमने उनको दे दिया सीखने को, सिखा दिया, और थोड़ा सा छोटा छोटा कोड लिखना सीख जाए, सो दैट हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है ना उन्हीं को लेकर के कर सकते हैं। जैसे V=U+80 जो लॉज ऑफ मोशन है, हम इन्हीं को लेकर के करें। जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म जो एक तरीके से जो ग्राफ आते हैं, तो हम उन्हीं को प्लॉट कर सकते हैं। सो बेसिकली जब ये स्टूडेंट को हम ये सिखाएं तो उनको HTML की जैसे नॉलेज हो जाए, है ना, और JSS जावास्क्रिप्ट की नॉलेज हो जाए, तो हम कहते हैं इनिशियली वो HTML के छोटे छोटे कोड लिखना सीख जाए, तो वो भी काफी होगा। तो एक ऐसी आप एक टीम बना सकते हैं सर। जैसे कि मैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित रहती हूँ हमेशा कि स्टूडेंट्स हम लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े। मतलब हमारे में टोटल 100 स्टूडेंट हो गए सिर्फ वर्चुअल रियलिटी पे काम करने वाले, क्योंकि ये तो 3rd ईयर में है, अब इनका तो फाइनल ईयर आ रहा है, तो दे विल बी बिजी इन देयर प्रोग्राम। तो मैम ऐसा कर सकते हैं मैम, जैसे आपका भी ये वर्कशॉप चल रहा है, तो एक छोटा सा एक ये इस चीज के लिए वर्कशॉप रख दे बच्चों के लिए, जिसमें हाँ, बच्चों को थोड़ा मैं स्पीकर्स दे दूं, तो बच्चों को थोड़ा हम सिखाएं मैम। बिल्कुल, हम थोड़ा सा ये करना चाहते थे कि मैं सोच रही थी कि इनको ब्लेंडर की थोड़ी सी नॉलेज एक दे देते हैं, है ना। हमारे स्टूडेंट एक्चुअली वर्कशॉप करने में इंटरेस्टेड भी हैं, और जैसे ही ये अभी फ्री हो जाएंगे एग्जाम से, तो हम एक वर्कशॉप करेंगे। अभी एक वर्कशॉप हम अभी और करने जा रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे को 13 को, VR पर ही फॉर 1 डे। और एक हमारे पास IIT मुंबई के भी एक है रफीक मबूर, जो कि साइंस इलस्ट्रेटर हैं, तो ही इज वर्किंग ऑन दैट ब्लेंडर, और इन सब पे कैसे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। तो एक्चुअली उनका मैंने 6 डे का लास्ट ईयर एक FDP प्रोग्राम कराया था, तो इस बार भी हम लोग उनको 1 दिन की वर्कशॉप स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट के लिए एक्चुअली क्या होता है ना कि थोड़े से क्रंचेस में रखें तो ज्यादा सही रहता है, है ना। तो इस तरह से मुझे लग रहा है काफी अच्छा होगा, समय बीत गया है। जी सर। हम्म। देखिए बच्चे, जैसे अभी मैम ने आपको एक इस खूबसूरत एक स्टोरी सुनाई, एक मूवी की सुनाई कि आजकल टेक्नोलॉजी कहाँ पीक पे है। तो हमें देखिए, अगर आप इफ यू आर सपोज यू आर बिकम टू बी अ इंजीनियर, तो खाली हमें किताबी नॉलेज वही जो हम सालों से सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं उससे थोड़ा हटके हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे मैम आप, मैंने कहा ना, आप बहुत लकी हैं कि मैम आपको मार्गदर्शन, मैम बहुत अच्छा काम करवा रही हैं अपने VR टेक्नोलॉजी पे अपने बच्चों से। तो आप भी ऐसी टेक्नोलॉजी सीखिए। जैसे अभी सर ने शायद, सर आपने अनाउंस किया है कि हम बांदा में ऐसी कोई FDP करने वाले हैं कॉलेज में अपने। सर मैडम ग्रुप पे भी भेजा हुआ है, और कल स्टूडेंट्स को ब्रीफ भी किया था हम लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैम ने ब्रीफ भी किया है, तो बच्चे इसको इनिशिएट लीजिए, इस टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करिए और सीखिए। तो आपका आगे फर्दर सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होगा कि आपको टेक्नोलॉजी सीखने को मिलेगी। VR खाली वर्चुअल लैब में नहीं, बहुत सी टेक्नोलॉजी में आजकल यूज हो रहा है, तो आपको हर एक जगह ये VR टेक्नोलॉजी काम आएगी। और दूसरी बात, अगर इफ यू सपोज टू बी अ इंटर्न्स एट IIT कानपुर एट द कैंपस, तो ये सबसे ज्यादा बेनिफिट इसे रहेगा, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पर मूव कर रहे हैं। वर्चुअल लैब को लेके हम लोग VR पे जा रहे हैं। जैसे अगर PSID के बच्चे, ये पहले बच्चे ऐसे हैं जो VR पे काम कर रहे हैं, तो दे आर दी फर्स्ट पीपल। तो मैं चाहूंगी आप भी ऐसे ही इन बच्चों को फॉलो करिए, मैम से गाइडेंस लीजिए इसको कैसे करना है। और नहीं है तो आप अपने, हम एक वर्कशॉप भी आपके वहाँ ऑर्गेनाइज कर देंगे, मैम उसमें रहेंगे मेंटोरशिप में,
हम लोग रहेंगे तो एक पूरी अच्छी हम लोग एफडीपी मैम के गाइडेंस में कर देंगे, जिससे आपको पता चलेगा वीआर का बेनिफिट्स क्या है। तो मैं चाहूंगी इस जो एफडीपी हो रही है 1 वीक की, आप उसको ज्वाइन करिए, जो बच्चे Yes, इंटरेस्ट। जी मैम, आप कुछ बता दीजिए, बच्चों को तो मोटिवेशन मिलेगा मैम, आप तो काम बस कर रहे हैं। बच्चों, मुझे मुझे यही कहना था। आई जस्ट वांट टू शेयर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज कीप बीइंग सीरियस हियर। जितना ज्यादा से ज्यादा आप सीरियस होंगे उतना ही अच्छा होगा। वी विल गिव यू स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स इन चंक्स। छोटे छोटे प्रोजेक्ट देंगे हम आपको, जिससे कि आपको कुछ लर्निंग हो। मतलब आप ही के जो एक्सपेरिमेंट है वो हम आप ही से डिजाइन करवाएंगे। छोटे छोटे चंक्स में आपको डिजाइन करवाएंगे। इनिशियली वी यू विल ट्राई टू मेक अ वर्चुअल लैब ऑन इट। आपको ऑब्जेक्ट डिजाइन कैसे करना है ये सारी चीजें पहले सिखाएंगे, एंड देन वी विल गो फॉर द इंटायर एक्सपेरिमेंट कि कैसे आप उसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस कोई एक दिन का नहीं है, इट टेक सम टाइम। बट द थिंग इज, जरूरी नहीं कि इसके लिए इंजीनियर ही बनना जरूरी है। अरे भाई, आपको आपको मैं बता दूं, इन्फोसिस और टीसीएस दे ट्रस्ट वेरी वेल और वेरी स्ट्रांगली टू द बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट, क्योंकि वो फर्म को छोड़ के नहीं जाते। but the software engineer, when they will give a good एक स्पाइक मिल जाता उन्हें, so basically एक जैसे ही उनको सैलरी हाइक मिला वो छोड़ के चले जाते हैं। so they completely trust on the students who can stay for a long time जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत ज्यादा वो करते हैं। like I am associated with PSIT. I joined PSIT Institute 2009 and I have seen the changes in at our institute. बहुत बड़ा चेंज आया है और डे बाय डे हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। Now it is quite possible just because of some association with IIT कानपुर। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चे IIT से जुड़ जाते हैं, इंटर्नशिप लेते हैं, उनको सीखने को मिलता है। चलिए, ये तो इंजीनियर है, बट ये जो बीएससी स्टूडेंट है ये तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इंजीनियर तो फिर भी उनका जो साइंस पार्ट है ना वीक होता है, लेकिन जो क्योंकि वो तो कोशिश करते हैं शॉर्टकट में हम कर लें, शॉर्टकट में कर लें, इस साइंस का हमें क्या यूज। लेकिन आप तो साइंस बैकग्राउंड कोर साइंस है, और कोर साइंस आपको पता है ये जो चंद्रयान 3 मिशन था, इट कुड बी पॉसिबल। क्यों पॉसिबल हुआ? आपने इतनी सारी मूवीज देख ली, इतनी सारी चीजें देख ली, just by deploying simple mathematics and simple physical concept। सिर्फ सिंपल फिजिक्स जो है उसको अप्लाई किया और वो वहां पे अप्लाई करते हुए सक्सेसफुली चंद्रयान 3 लैंड हुआ। कोई रॉकेट साइंस नहीं थी उसमें। हमारी वहां तक की साइंस जो कोडिंग थी दैट वाज अप्रोप्रिएट, बट हमारे फिजिकल जो लॉस थे वी वर नॉट फॉलोइंग व्हेनेवर ट्राइंग टू लैंड। तो आप ये सोचिए कि जो साइंस का इफेक्ट है वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। साइंस की नॉलेज होना सबको बहुत जरूरी है। जितने एस्ट्रोनॉट जाते हैं, अगर उन्हें साइंस की नॉलेज नहीं होगी तो बताइए कॉस्मिक रेज आएंगी? जब वो स्पेस स्टेशन में जाएंगे तो क्या वो कॉस्मिक आंधी में फंस के रह जाएंगे? नहीं ना। उसे फाइट करने के लिए उन्हें फिजिकल लॉस के बारे में पता होना चाहिए। जब उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो कैसे फाइट करेंगे? उन्हें पता होना चाहिए कि भाई कहाँ के क्या जी है, कहाँ क्या वैल्यू है। तो ये तो तब पता होगा ना जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। किसको ज्यादा अच्छा पता है, आपको कि या एक इंजीनियर को? आपको सबसे ज्यादा बेहतर पता है। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कोडिंग भी सीख सकते हैं, आप नई टेक्नोलॉजीज भी सीख सकते हैं। आज आप देखिए क्वांटम इंटेंगलमेंट आप देख रहे हो। आप इतनी मूवीज साइंस फिक्शन मूवीज देखते हो ना, ये एवेंजर्स और ये सब देखते रहते हो। आप उसको आप देखते थे, वो आपके लिए एक ड्रीम था, सपना था। अब आज देखिए क्वांटम इंटेंगलमेंट पॉसिबल हो गया है इन केस ऑफ पार्टिकल। कल दूर नहीं है कि इंसान को हम फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, क्योंकि टेली ट्रांसपोर्टिंग देखिए हो रही है। पार्टिकल के केस में एक इलेक्ट्रॉन इफेक्ट करता है अगर एक दुनिया में, तो the same electron which is associated with this electron in another universe is going to be affected. It comes true just because of quantum entanglement. तो आप ये सब चीजें देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। आप डेली इन सब चीजों को पढ़िए, समझिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। और ये बच्चे
गांव से ही निकल कर आते हैं, ये भी आपको बता दें। जो टीम आपकी जो चंद्रयान 3 में या इसरो में जो टीम दिखाई देती है, वो किसी बहुत आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े कॉलेज है, बहुत बड़े यूनिवर्सिटी या क्या बताएं हार्वर्ड से निकल रहे हैं या कुछ ऐसा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना, आपके नाम भी नारायण कहाँ थे, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से थे, उन्होंने सक्सेसफुली मिशन को कामयाब बनाया था। ठीक है, तो मल्टीपल जो प्रोजेक्शंस ऑफ सैटेलाइट ये तो पॉसिबल हुआ, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ नाम भी नारायण। तो ये कहाँ से आई ये सब? ऐसे ही नॉर्मल कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। अब्दुल कलाम जी कहाँ से थे भाई? बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि एक छोटे से गांव से थे, लेकिन जब वो कर पाए तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, हम बच्चे भी कर पाएंगे। बस देरी है इनिशिएटिव लेने की, देरी है कि इधर उधर की बातचीत किए बगैर हम अपने आप को कैसे पॉजिटिवली एंगेज कर दें अपने टीचर के साथ, अपने फैकल्टी के साथ, उसका सर खा जाइए पूरी तरह से कि अब हमें बताइए हमें कल क्या करना है पूरा आप। और आपके लिए स्पेशली एफडीपी करेंगे, आरईसी वाली तो ज्वाइन करिए ही करिए ज्यादा से ज्यादा। और इसके बाद हम एक एफडीपी करेंगे, एफडीपी नहीं, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, एसडीपी करेंगे हम लोग, सो दैट इस एसडीपी से बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़े और उनको हम बिल्कुल बेसिक, मतलब हम वो सोच के दे रहे हैं, कोई लेक्चर नहीं, सिंपल एक हैंड्स ऑन सेशन कि अगर उनको सर कंप्यूटर फैसिलिटी अगर आपके कॉलेज में हो, ठीक है, तो आप उतने ही बच्चों को ज्वाइन कराइए। हम नहीं कहते कि आप पूरी बहुत ज्यादा को कराइए, हम टाइम टू टाइम कुछ कुछ स्लॉट्स को लेकर के कर लेंगे। मान लीजिए आपके पास 12 का स्लॉट है कंप्यूटर का, तो आप एक कंप्यूटर में कम से कम 5 बच्चों को बैठा दीजिए। 12 5 से 60 एट ए टाइम 60 बच्चों को सीखने को मिल जाएगा। उसका हैंड्स ऑन सेशन पूरा देंगे हम, वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअल लैब के थ्रू। ठीक है, तो बच्चे जिससे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट उनको असाइनमेंट दे देंगे और वो काम कर लिया जाएगा। तो सर आप ऐसे अगर आप चाहें तो 60 स्टूडेंट्स की एक टीम बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम कितने अवेलेबल हैं आपके, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। जी मैंने देखा आपके बिल्कुल बराबर में मैडम बैठी हुई है। नमस्कार मैडम। आप भाई आपकी सानिध्य में संजीव जी काफी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और मैंने देखा कि आप बहुत एक्टिव प्रिंसिपल रही अपने बदायूं से। अरे जी जी बिल्कुल, आप देखिए बदायूं में रिसर्च लैब है, मतलब कैन यू एक्सपेक्ट एक वहां पे एक शहर में बताइए इतने गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं। सर ने इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है कि पूरे इंडिया से बच्चे जुड़ रहे हैं और कल तो मैंने देखा था शायद कुछ बाहर के भी लोग, तो जो कि मतलब आप ये सोचिए कि एक जी जी जी, अच्छा अच्छा, ओके, जी बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल, ऐसे लोगों से तो हम लोगों को बिल्कुल मिलना चाहिए। जी अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ, श्योर श्योर श्योर, श्योर सर।
देखिए देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों के लिए समय ही समय है हमारे पास, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। नमस्ते बेटा, बहुत अच्छी बात है, आप इसी तरह से मेहनत करिए और इनिशिएटिव लीजिए, जैसे ऑर्गेनाइज़ करना भी, ये सब चीज़ें जो हैं अपने टीचर के साथ मिलकर के सब कुछ करते रहिए और डेवलपमेंट पर भी काम करिए जो आगे से आगे कर सकते हैं, ठीक है? जी, जी। वेलकम, 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 वेलकम। जी सर, चलिए सर कल 11 AM मिलते हैं हम लोग फिर 2 नए एक्सपेरिमेंट के साथ और कल शायद सेकंड ईयर का होगा ना? थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ। हाँ, ठीक। ओके ठीक सर। है। ओके सर, थैंक यू मैम, थैंक यू।